السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری کالے جادو کی ہانڈی کا خطرناک عمل۔ یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ ویسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی گئی، لیکن اس کا مرض تھا ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، اور میرے بہنوئی کی ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن بنی تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھانے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے۔ ایک صرف شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا، جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں بھی کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنے بہن سے چھپائی تھی، کیونکہ وہ پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا، میرا بہنوئی مر رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں سے گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر میں کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا، اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بیرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئے؟ بیرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ بیرے نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں پانی۔ جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب، آپ تو تنگ کر رہے ہو، اس میں تو پانی ہی ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بیرے کے ہاتھوں میں تھا تو اس میں پانی، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اس جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا۔ کوئی جادوگر یا جیلی عمل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔
जब मेरी बात ख़त्म हुई तो उसने कहा कि तुम मुझे अभी अपने बहनोई को दिखा सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर है और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि चलो, और मैं उनको लेकर घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया और उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने मेरी बहनोई को देखा, जल्दी से आंखों पर सरसों का तेल गरम करो। मैंने फ़ौरन हुक्म की तामील की और एक कढ़ाई में तेल गरम होने को रख दिया। जब तेल खोलने लगा तो आमल साहब ने ताज़ा वज़ू किया और कुछ पढ़ते हुए अपना गीला पैर उस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं काम कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी उस खोलते तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। और थोड़ी सी छन की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे बहनोई पर ज़बरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत अब ख़त्म होने ही वाली है, यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक़्त नहीं है। तो मैंने कहा, यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है, लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ़ है? उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज़ है, मर्द है, जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फ़ायदा होगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे बहनोई को तो सिर्फ़ एक बहन है, बेवा, जिसकी 2 बेटियां हैं। उनकी कफ़ालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। हाँ, एक चचा तो बहुत नेक इंसान हैं, आजकल बहनोई का कारोबार वही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल नेकी बदी को कौन देखता है। दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई का भाई दुश्मन बना हुआ है, और तुम चचा की बात करते हो। तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई अकलौता है, यानी अपने चचा का अकलौता भतीजा, यानी उनके भाई की जायदाद का वारिस। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये ज़िंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मुझे हज़म नहीं बात ये हो रही थी। फिर भी कोई दौलत के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही खून की जान लेना चाहेगा। आमल साहब ने कहा कि इसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फ़िलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपनी बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और ख़ानदानी अमल हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बख्शा है। ये अमल जो हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ ज़रूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करते। दूसरी बात ये कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मौत यकीनी होती है और तुम्हारे बहनोई को मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी आमल इस काम में हाथ नहीं डालेगा। बहुत सख्त अमल है। अब बताओ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदारा शाह साहब, अल्लाह के बाद आपका सहारा है। मैं आपकी सारी ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। बस मेरी बहनोई को बचा लीजिए, मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर करेंगे इलाज, बल्कि हम आ ही इसलिए हैं। लेकिन क्या तुम इस अमल की कार्ड का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, आप बताइए, मैं कैसे भी करके दूंगा। उन्होंने कहा, वैसे तो इस काम के 10,000 बनते हैं, लेकिन तुम 6,000 दे देना। क्यों, मंजूर है? उस ज़माने में 6,000 भी बहुत बड़ी रकम थी और मैं अपने बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था। मेरा भी अपना कारोबार था और मैं हर कीमत पर बहन को उजड़ने से बचाना चाहता था।
मैंने हामी भर ली। मैंने कहा जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। शाह साहब ने कहा तो फिर सुनो, ये जो अभी हमने तेल तैयार किया है, ये आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे कि मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोज़ाना करनी है। अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे, इंशाअल्लाह उम्मीद है कामयाबी होगी। और वो चले गए। मैंने घर में आकर खीवातीन को सारी बात बताई, उनको तसल्ली दी कि अब जल्दी दुल्हा भाई ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर रौनक आ गई। बहरहाल मैं बहनोई के कमरे में आया, वो बेसुध पड़े थे। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ चंद महीनों में ही उनकी क्या से क्या हालत हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अम्मी कहा करती थी कि खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खून सफ़ेद नहीं, स्याह हो गए हैं। तब ही मोहब्बत मुरव्वत एहसास का कोई रंग असर अंदाज नहीं होता और हम अपने हाथों से अपनी बेहिसी के हाथों तारीकियों में धकेल दे जाते हैं। और काला जादू इतना ख़तरनाक और गंदा अमल है कि करवाने वाला अगर मुसलमान हो तो उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अफसोस उन लोगों पर है कि जो जानते बुझते जहन्नम में गिरते हैं और मुसलमान होकर खौफे खुदा नहीं करते और इतना कभी फेल सर अंजाम देते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद करके दुल्हा भाई की मालिश की और 3 दिन तक करता रहा। तीसरे रोज़ वादे के मुताबिक शाह साहब खुद आ गए। दोपहर का वक़्त था। मैं उनको लेकर दुल्हा भाई के कमरे की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाज़त है। मैंने कहा जी शाह साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो नहीं है घर में। मैंने कहा जी नहीं, सिर्फ खिवातीन हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, उन सब को एक कमरे में रहने की हिदायत कर दो और ताकीद कर दो कि कमरे से बाहर ना निकलें। अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम ये हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब खिवातीन को कमरे के अंदर रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहब के पास आ गया। मैं जब कमरे में आया तो दुल्हा भाई कमरे में खड़े थे और शाह साहब कुछ पढ़ते हुए उनका हिसार कर रहे थे। दुल्हा भाई मैंने जाने कैसे खड़े होने की ताकत आ गई थी। शायद ये उस तेल का कमाल था जो मालिश करने के लिए दिया गया था और मैंने बिला नागा 3 दिन तक उस तेल की मालिश की थी। इसलिए दुल्हा भाई बड़ी हिम्मत से दीवार से लगे खड़े थे। शाह साहब ने दुल्हा भाई को कहा, बेटा तुम्हें किसी भी सूरत में इस हिसार से बाहर नहीं निकलना, वरना सारा अमल उल्टा पड़ जाएगा। यहीं खड़े रहो। अमल ख़त्म होने तक तो उन्होंने जी कहकर सर झुका दिया। उसके बाद शाह साहब ने मेरा भी हिसार किया और फिर दायरा बनाकर हिसार करके खुद भी बैठ गए। अमल शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में मौजूद रोशनदान में ज़बरदस्त गड़गड़ाहट होने लगी। मैंने चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा तो वहाँ हांडी फंसी हुई थी। हांडी को आता देखकर शाह साहब के अमल में तेज़ी आ गई और वो बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे शाह साहब की आवाज़ बुलंद हो रही थी, हांडी की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी। फिर शाह साहब ने उसको कसम दी, तुझे हज़रत सुलेमान की कसम है, नीचे आ। और जैसे ही ये अल्फाज उधर आए, हांडी ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ कमरे में उतरी। थोड़ी सी चकराने के बाद ज़ोरदार धमाके से ज़मीन पर गिरकर फट गई। उसके गिरने की आवाज़ इतनी शदीद थी कि जैसे बम फटा हो। हमने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमरे में मौजूद खिवातीन के दिल भी दहल गए होंगे। हांडी फटी तो उसके अंदर मौजूद सारा सामान बिखर गया। ना जाने क्या क्या चीज़ें थी। काबिल ज़िक्र चीज़ एक पुतला था जिस पर दुल्हा भाई का नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान निगाहों से उस पुतले और सामान को देख रहा था कि शाह साहब ने मुझे कहा, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। मैं दौड़कर पानी से भरी बाल्टी उठा लाया।
शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान उस बाल्टी में डाल दिया। उस सामान से बुरी तरह धुएं उठ रहे थे और इस तरह खौल रहा था जैसे चूना उबल रहा हो। थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हिदायत पर सबसे पहले दुल्हा भाई को उनके बिस्तर तक पहुंचाकर लिटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे और इतनी बुरी तरह हाँफ रहे थे जिससे मीलों भाग कर आए हों। और मैंने उन्हें पानी पिलाया। शाह साहब ने दुल्हा भाई को कहा कि बेफिक्र होकर आराम करो बेटा, अब कोई खतरा नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मट्टी में मिल गए। अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। मैंने कहा शाह साहब, आपने मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसके लिए किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो वसीला हूं। अल्लाह ताला की रहमत का उसने हमें कामयाबी दी, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह हांडी का जो सामान है ये रात की तारीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना और बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हदिया नजराना देकर रुखसत किया और वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी मैंने एहतियात से रख ली। घर के सब अफराद ने सजदा शुक्र अदा किया। उस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना उस मौत की हांडी की मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे। रात को मैं कब्रिस्तान में जाकर वो पोटली बड़े एहतियात से गड़ा खोद कर दफना दी। इतने साल गुजरने के बाद भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मेरी बहनोई की तबीयत उस अमल के फ़ौरन बाद से ही संभलनी शुरू हो गई थी और अब वो माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये अलग दास्तान है कि उन्होंने अपने चचा से किस तरह जान छुड़वाई। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।